Hey guys, welcome again on our YouTube channel Upgrad Learning Center. So this side Adityavesh from Jaipur Center. So we will be continuing with the Power BI series. So this is our sixth video. In this sixth video, we are going to cover again the query editor part. So inside the query editor, we are going to check today merging columns, merging queries, appending the queries. Also, then we'll explore the options of date here, where from the date how to get the individual parts from the date, and moving ahead we'll see how to create new columns with the help of the conditional formulas. Okay, the custom formulas that we have it, how to write our own formulas to create the new columns with the help of the Power BI query editor. What is the role of it, what is the main agenda behind it, and why it is important. Those things we are going to cover in this video. It's going to be a very lengthy video here, but all these things we will cover in the detail. And in this today video, we are going to cover the whole of the Power BI query editor. And in the next upcoming video, we are going to check with the dataset that we have it, how to clean that dataset. So this is going to be a final video where the query editor part is going to end. So I hope that you will enjoy it. So okay guys, let's move to the system and let's start working on the Power BI query editor. Let's understand here few other important stuffs in query editor. So we are continuing with the addition of the query editor. So here we are. So in the previous session, if you remember, we worked on the transform window as well as we worked on the add column option available. Now today what we are going to do is that inside the home tab we were going to take these merge queries कि merge query क्या होती है, append query क्या होती है, फिर transform के अंदर हम इसमें देखेंगे what is the meaning of merge columns, और साथ ही हम ये वाले ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे जो कि डेट एंड टाइम कॉलम के हैं इनसाइड द ट्रांसफॉर्म. And then if you move ahead in the add columns, so today we are going to again explore these options date and time, and then how to create these conditional columns or the duplicate columns as well. So ये सारे options आज हम यहाँ पे try करेंगे query editor के अंदर. Okay, so let's move ahead with this thing. Now let's say we have the transform option. Let's go to our employee data, the whatever the data that we were working on. Okay, and inside this data set, if you can see that this is actually the untidy data that we have. So we have to clean this data set, but before cleaning we will complete these parts and then we will clean it. Okay, let's move to the orders here, and inside the orders, as you can see, we have the date column. Let's move to the transform here, and inside the transform you can see as I have selected the order date, so automatically this date option will be available to you. Okay, suppose if you are selecting some different column, now it is not available to you, it is only available for this particular data type where your data type is numerical. अगर आपका डेटा टाइप न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे. अगर आपका डेटा टाइप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे. सो हियर वी हैव दिस डेटा सेट विच इज़ द ऑर्डर डेट. इनसाइड दिस ऑर्डर डेट डेटा सेट वी कैन सी कि डेट का हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं. वैसे ही ऑप्शंस आपको टाइम के अंदर भी आएंगे और ड्यूरेशन के अंदर भी आपको दिखाई देंगे. सो डेट के अंदर व्हाट यू कैन से यू हैव द ऑप्शन ऑफ कैलकुलेटिंग द एज, डेट ओनली, ईयर, month, quarter, week, day, earliest and the latest. So we will explore these options one by one in detail. Okay, तो जैसे कि आपके पास ये ऑर्डर डेट है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में करंट कॉलम पे करना चाहता हूँ, ओके, देन आई विल गो विद द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन. बट सपोज अगर मुझे न्यू कॉलम क्रिएट करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपको कुछ नया कॉलम ही क्रिएट करना होता है. तो जब बात करते हैं न्यू कॉलम की, तो इस न्यू कॉलम को क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आपके पास सेम ही रहेंगे. सो साइड बाय साइड एक काम करेंगे कि हम न्यू कॉलम भी क्रिएट करते हुए चलेंगे. लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि हम जो ऑर्डर डेट है इसको लास्ट में एकदम मूव कर देते हैं, सो दैट साइड बाय साइड वी कैन कंपेयर what is happening in other columns as well. So let's select the order date, go to the add column. Now अगर इस डेट से मुझे एज चाहिए, ओके, so it's going to create क्या नया कॉलम आपको क्रिएट करके देगा where there will be the duration. Okay, it will calculate the age for you. So if you click here, you will say it has given you the age. So here the age is in what? It is in number of days. So आप डेट देख सकते हो यहाँ पे, it is 8/11/2016 और टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम दिस डेट, और आज की जो डेट है आपके पास टोटल इट इज़ 3451 डेज है. सेम वे में सपोज आपको इस डेट के कॉलम में से डेट ओनली, समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपके पास डेट एंड टाइम दोनों ही होते हैं, आपको टाइम की ज़रूरत नहीं है बट आपको सिर्फ डेट ही चाहिए, तो उस समय आप डेट ओनली को यूज़ कर सकते हैं एंड देन इट विल एक्सट्रैक्ट ओनली द डेट पार्ट, नॉट द टाइम पार्ट, राइट. देन यू हैव नेक्स्ट विल मूव इट ईयर.
नाउ हियर व्हाट यू कैन डू इज फ्रॉम द ईयर, डेट में से अगर आपको ईयर निकालना है, क्या ज़रूरत है ईयर निकालने की, अगर आपको कोई ईयर बेसिस के एनालिसिस अगर आपको परफॉर्म करने हैं, सो आप ईयर के लिए जाओगे और देन यू कैन सी हियर दैट it has created a new column where the years I have come here. Okay, so you have this data where you can say 14 to 17 this data is available to you. इसने डेट के कॉलम में से आपको ईयर अलग से सेपरेट आउट करके देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। सो इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर आप इसे सही से पढ़ते हैं, इट सेज इट्स गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कॉलम कंटेनिंग द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर करस्पॉन्डिंग टू ईच डेट एंड टाइम। तो जो भी आपने डेट सेलेक्ट कर रहे हो उस डेट का फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इट इज गोइंग टू गिव यू एज एन आउटपुट हियर। नाउ हियर यू कैन से यू आर गेटिंग द फर्स्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर दैट यू सपोज कंपेयर करना हो अगर आपको, तो ये आपने यहाँ पे देखोगे 1st of January 2016, here you are at 8/11/2016. So here right now we are not sure about the format. Okay, like first day part is coming or the month part is coming by just looking at this date. बट अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको बाकी डेट्स भी देखनी पड़ेंगी, तो ही आप बता सकते हैं कि पहला पार्ट डे है या मंथ है। तो हमें फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मिल गया। सेम वे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एंड ऑफ द ईयर। सो इट्स गोइंग टू अगेन क्रिएट अ न्यू कॉलम आपको क्रिएट करके देगा जहाँ पे लास्ट डे ऑफ द ईयर यू आर गोइंग टू गेट दैट इज ऑफ 31st okay 12/2016 will be the output here. So like this इंडिविजुअल पार्ट्स आपने समझे कैसे आप ईयर निकाल सकते हो, कैसे आप स्टार्ट ऑफ द ईयर की डेट निकाल सकते हो और एंड ऑफ द ईयर की डेट निकाल सकते हो यहाँ पे फ्रॉम द ऑर्डर डेट। Now let's again go to the order date and this time let's see what is the answers we are going to get for the month. Okay, so you can see here we have the first option, it's month option। क्या करेगा, आपको एक नया कॉलम क्रिएट करके देगा where you are going to have the corresponding month. So if you click on this you will get the month, so whatever is the month of this particular date that month will come. Okay, now let's move again and let's see what do we want from next. You have the start of the month, end of the month, days in the month, name of the month. अब you have the why, first of all why it is important to take the month, बिकॉज अगर आपको कोई मंथली एनालिसिस करना है तो आपको मंथ के नंबर चाहिए आपको। बट स्टार्ट ऑफ द मंथ मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ द मंथ, इट्स गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ओके, सेम वे इट्स गोइंग टू गिव द एंड ऑफ द मंथ, दैट इज एंड इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ। सो लेट्स फाइंड आउट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। नाउ हियर यू कैन से इट इज गिविंग यू द फर्स्ट डे ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट respectively for all the dates that you have it. And same way what you can do is that you are going to get the end of the month as well, that is the end date of that particular month that you are in, right? By the way what will be the need of it, अगर आपको फर्स्ट डे और एंड डे निकाल लिया तो उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि फर्स्ट डे आपने निकाल लिया या फिर एंड डे आपने महीने का निकाल लिया है, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो कि सेम जो हर एक महीने की अपनी सबकी टोटल करके अगर आप देखोगे टोटल यू हैव 12 मंथ, तो 12 आपके पास में एंड डेट आएंगी या एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट इट। ओके, कोई एनालिसिस अगर आपको करना है कि पर्टिकुलर मंथ वाइज वेयर एंड ऑफ द मंथ यू हैव, ओके, एंड ऑफ द मंथ से लेके डेटा कितना भी हो सकता है कि अगर आपके पास 20th तक का डेटा है लेकिन उसके आगे का डेटा नहीं है, तो पूरा एंड ऑफ द मंथ के अंदर वो पूरे डेटा को एक साथ ही कैलकुलेट करेगा और आपको बता देगा उस मंथ वाइज या नंबर ऑफ डेज वाइज एक एनालिसिस करके आप निकाल सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो। इसके आगे अगर हम चलें यहाँ पे देन यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ अगेन लेट्स मूव टू द मंथ एंड दिस टाइम यू हैव डेज इन मंथ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेज इन मंथ, इट्स गोइंग टू कैलकुलेट, इट्स गोइंग टू गिव द आउटपुट as a day that how what is the number of days okay in a month you are. So you can say here total we have in particular month how many days you are having. So किसी भी महीने के अंदर जैसे आप 11th मंथ देख सकते हो इसके अंदर 30 नंबर ऑफ डेज यू हैव इट एंड रिस्पेक्टिवली अगर आप और भी यहाँ पे देखोगे 12th मंथ यू हैव इट तो 31 डेज आर इनसाइड दिस डे। फिर से जाएंगे ऑर्डर डेट पे एंड दिस टाइम वी विल टेक आउट दी मंथ के अंदर नेम ऑफ द मंथ। ओके, we have understood dates but now we are going to take out the name. So name of month it's going to give you एक अगेन वापस एक नया कॉलम क्रिएट करेगा एंड इस नए कॉलम के अंदर आपको इस बार मंथ का नेम आएगा। ओके, आपने बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी देखी होंगी जहाँ पे मंथ का नंबर है बट नेम नहीं है।
अगर नेम वाइज अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको भी क्लियर होगा कि हर महीने की जो रिपोर्ट आपके पास आई है डे वाइज या फिर मंथ वाइज या फिर वीक वाइज, तो मंथ को आपने नाम दे दिया है। और अगर आपको यही काम करना होता है एक्सेल के थ्रू तो it would have been difficult to get the names, although there are tricks, but yes, it would have been difficult to get or to summarize the report with the help of the month names. So here we can just directly do it with the option available for us, so we don't have to write any code for it, we just have to select it. Then next अगर आप मूव करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन है क्वार्टर का। क्वार्टर क्या होता है? टोटल एक साल के अंदर आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री एज वेल कि कंट्री अपने फाइनेंशियल जो ईयर है वो किस टाइप से फॉलो करती है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, यू नो कि जो हमारी जो फाइनेंशियल क्वार्टर्स है दे स्टार्ट फ्रॉम दी 1 मार्च से शुरू होते हैं, राइट। प्रीवियस मंथ फरवरी को कंसिडर करते हैं एंड देन यू कैन से कि डिफरेंट वी हैव 3 मंथ ऑफ क्वार्टर्स अवेलेबल इनसाइड द फुल ईयर। अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे जैसे कि यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे उनके क्वार्टर्स अलग रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री आपके क्वार्टर्स चेंज होंगे। बट इतना याद रखना है हर क्वार्टर के अंदर आपके 3 महीने विल बी देयर, ओके, 3 मंथ्स विल बी देयर। लाइक दैट अगर आपको यहाँ से क्वार्टर पता करना हो व्हाट विल बी द क्वार्टर ऑफ दिस ईयर फॉर दिस 2016, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कॉलम फॉर यू वेर इट विल से आंसर इन 1 2 3 4 कि आप कौन से क्वार्टर के अंदर हो इस समय। सो यू आर इन टू क्वार्टर 1 2 3 4 लाइक दैट इट विल गिव यू द आंसर एंड डिस्प्ले इट, ओके। Let's move ahead again and we can see that inside the quarter as a start of a quarter or end of a quarter. What is this start of a quarter is going to do? It's going to create a new column again for you corresponding the start of the corresponding to the each date, okay. So if you get this, you can see here that quarter wise what is the first day you are going to have. जैसे नवंबर है हमारे पास यहाँ पे, बट इस क्वार्टर का जो पहला दिन है वो क्या है? 1 यू कैन से अक्टूबर इट इज, ओके, फॉर द मंथ ऑफ November. Okay, respectively we are going to get the first date of all the quarters. Then उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे then you have the again end का भी ऑप्शन आपके पास है, end of quarter, मतलब वो क्वार्टर कौन सी डेट को वो एंड हो रहा है। तो you can say that we are getting for this, तो 10th 11th and 12th यहाँ पे 3 महीने को इसने कंसिडर किया है और ये बता रहा है कि कौन से क्वार्टर में, 4th क्वार्टर के अंदर है ये। अगर आप वैसे ही सेकंड क्वार्टर का देखोगे तो सेकंड क्वार्टर आपका 1 अप्रैल से 30/6, दैट मीन इट इज़ गोइंग टू अप्रैल मई एंड जून को कंसिडर कर रहा है। देन अगर आप फर्स्ट को देखोगे यहाँ पे यू कैन से दिस इज फर्स्ट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जनवरी टू द 31 मार्च बिकॉज दिस डेटा इज फ्रॉम द यूएस, ओके। सो द क्वार्टर्स आर कंसिडर फ्रॉम जनवरी, बट इंडिया द क्वार्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड फ्रॉम जनवरी। So like that quarter is taken care of here, right? Then again let's move to the order date and let's find out other things. Now quarter we are done. Now next we have the week of a year, week of the month, start of the week and end of the week. Again these two are going to give you the date. Let's say what is the week of the year. Yeah, so week of the year you can say that it is giving you the week of that पूरे साल के अंदर आप कौन से हफ्ते के अंदर हो, ये आपको वीक ऑफ द ईयर एज एन आउटपुट देगा। अगर आपको वीक ऑन वीक एनालिसिस करना है तब आप वीक ऑफ द ईयर को आप यूज़ करेंगे, ओके। आप वीक डायरेक्टली आपने निकाल लिया अपनी डेट के थ्रू। नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस टाइम वी हैव द वीक ऑफ मंथ एज वेल, ओके। सो दिस कॉलम इफ़ यू से कि अगर आपके पास जो कॉलम इस बार आएगा ये आपको वीक बताएगा, लेकिन वीक किसका बताएगा? महीने का वीक बताएगा, बल्कि साल का वीक नहीं बताएगा। तो जो भी करस्पॉन्डिंग डेट है ये डेट आपके पूरे महीने में कौन से हफ्ते की डेट है, कौन से हफ्ते में, लाइक फर्स्ट वीक में है, सेकंड वीक में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, ऐसे करके टोटल आपको यहाँ पे वीक ऑफ द मंथ का आउटपुट आपके पास आएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे देन फिर से हमारे पास में वीक के अंदर we have the option of start of the week, so this is going to give you the date of this particular date, जैसे कि 8/11 है तो यहाँ पे start of the week क्या है, 6 तारीख से आपका वीक शुरू हो रहा है, okay, for this particular order date, right? Then you have the end, you don't go to week, then end of the week, you will find here that you are going to get the end of that particular week कि week कब से शुरू हो रहा है, जो भी वो corresponding date है उसकी फर्स्ट जो
स्टार्ट डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है, क्योंकि ये सेकंड के अंदर लाई कर रहा है। यू कैन से इट इज़ द वीक कौन सा है, सेकंड है, तो वीक कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है और कौन सी तारीख को एंड कर रहा है, दैट इज़ द वीक पूरा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। देन नाउ लेट्स मूव अहेड एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू चेक फॉर the days options, whatever the options we are going to have at the days. So let me put it again at the end. If you go this, you have the option of day. If you click on the day, you can see how many options we have. 6 options on the day. So if you say day, let's say what is the output कि आप कौन सा दिन है, 8 तारीख है, तो वो आउटपुट दे दिया आपको डे ने। फिर उसके बाद आप वापस से गए डे के अंदर, दिस टाइम डे ऑफ द वीक, हफ्ते का कौन सा दिन है वो निकाल के दे देगा कि हफ्ते का यू आर इनटू द सेकंड डे और फर्स्ट डे। टोटल हफ्ते के अंदर कितने दिन हैं, 7 दिन हैं, तो 0 से लेके काउंटिंग शुरू करता है 6 तक। ओके, एंड यू कैन से हियर like that respectively. I'll just take out all the days that we have it. Okay, different. So this is day of year, then you have respectively start of day, and then you can say end of day. स्टार्ट एंड एंड का तो वैसे कोई मतलब नहीं है, तो बस ये कि डे आपका कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, सेम डेट रहेगा। Now you can see, you can compare all these things here, that here the day, that is the 8th is the date, day of the week क्या है, second है। okay, आपको बताया 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 being right, and 0 being suppose here it is Sunday, Monday and Tuesday, 0 being Sunday, 1 is Monday and 2 is what, Tuesday it is। So you can see here, this is how it is taking care of 0 being Sunday by default। okay, and day name here you can say that is in name, okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, like that, and then you have the day of the year, पूरे साल का कौन सा दिन है ये आपको डे ऑफ द ईयर आंसर देगा। डे ऑफ द वीक मतलब हफ्ते का कौन सा दिन है, डे ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल का कौन सा दिन है, डे मतलब वो दिन कौन सा है, दैट इज डे। जस्ट टेकिंग आउट डे पार्ट फ्रॉम द डेट इज द डे ऑप्शन यू हैव। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दैट वीक के बारे में अगर हम देखेंगे तो वीक ऑफ द ईयर क्या कहेगा, पूरे साल का कौन सा हफ्ता है। वीक ऑफ द मंथ इज गोइंग टू डू पूरे महीने में कौन सा हफ्ता है। वीक कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हुआ है, दैट इज व्हाट द वीक स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक इज गोइंग टू गिव। देन यू हैव द क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर यू कैन से कि पूरे साल में कौन से क्वार्टर में वो लाई कर रहा है, कब वो क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, कब वो क्वार्टर एंड हो रहा है। एंड देन यू हैव द मंथ फॉर्मूले अवेलेबल, वेयर इज द मंथ नेम इज, कि मंथ का नाम क्या है, मंथ कौन सा है। ओके, स्टार्ट ऑफ द मंथ कौन सी तारीख है, एंड ऑफ द मंथ कौन सी तारीख है, दैट इज व्हाट इट्स गोइंग टू गिव यू हियर। सो यू कैन से देयर आर लॉट मैनी formulas and you don't have to write anything here, you just have to select it, and based on your selections you can say these individual parts have come here from the order date only। okay, excuse me। now I hope कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आप इंडिविजुअल पार्ट्स निकालते हैं फ्रॉम द डेट पार्ट। देन ये वाला पार्ट आपका ऐड कॉलम्स के अंदर डेट वाला ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद अगर हम जाएंगे नेक्स्ट, वी हैव द ऑप्शन ऑफ हियर इन द ट्रांसफॉर्म, दैट इज वी कॉल्ड इट एज मर्ज कॉलम्स, और ऐड कॉलम्स के अंदर भी हमारे पास एक मर्ज कॉलम का ऑप्शन है। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज टू मर्ज द कॉलम्स। ओके, लेट्स से we have the another data set, let's go to this particular data set। I have these taken samples of the data set here। okay, so let's say here that we have the unit sold and we have the revenue available in these two in this data set। now अगर मेरी requirement अभी ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्टोर आईडी है और जो लैब प्रोडक्ट है दोनों एक साथ मर्ज हो जाए और एक ही कॉलम के अंदर आए, तो हम कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टोर आईडी को आपने सेलेक्ट किया पहले, फिर प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट किया, और अगर आप ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं देन मर्ज कॉलम के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो मर्ज कॉलम के ऑप्शन को जब यूज़ करेंगे तो उसके बाद एक विंडो आएगी छोटी सी, एंड इट इज सेइंग कि आप दोनों ही कॉलम के बीच में सेपरेटर क्या रखना चाहते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे स्पेस एज अ सेपरेटर रख दिया दोनों ही वैल्यूज़ के बीच में। आई जस्ट गिव द नेम टू द न्यू कॉलम, दैट इज स्टोर आईडी एंड प्रोडक्ट, लाइक दिस। इसको आपने ओके कर दिया। नाउ इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम फॉर मी
okay, in the existing column itself where you can say store id and the product is merged together, एक साथ ही merge हो चुके हैं, एक नया कॉलम इसने यहाँ पे मेरे को क्रिएट करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जब भी कभी दो कॉलम्स को मर्ज करना होगा या दो कॉलम्स को एक साथ करना होगा। तो एक तरीके से ये हो गया कि जब भी आप यहाँ पे मर्ज परफॉर्म करेंगे, लेट्स से कि हमें दो नंबर्स के कॉलम्स पे मैं मर्ज परफॉर्म कर रहा हूँ और एक बार इनका भी आउटपुट आप देख लीजिए। मर्ज इज़ बेसिकली अ कॉन्कैटिनेशन। व्हाट इज़ इट? इट्स बेसिकली अ कॉन्कैटिनेशन, जहाँ पे आप एक टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट के साथ कॉन्कैटिनेट करते हो। जैसे अब हमने यहाँ पे दोनों को मर्ज कर दिया, नाउ वी आर गेटिंग वन वैल्यू सेपरेटेड बाय अनदर वैल्यू विद द कॉमा, राइट। तो कॉमा के बेसिस पे ये सेपरेट कर रही हैं। इट इज़ द फॉर्मूला सेम of the concatenate. It's going to concatenate the currently selected columns into one column. That is the meaning of merge column here. I hope that this is clear. It is very important. Sometimes it is asked what is the difference between merge columns and what is the difference here between the merge queries. So don't get confused. अब मैं चलता हूँ merge queries के ऊपर और इसको भी समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो जब हम बात करते हैं merge queries की, query मतलब that you have कनेक्टेड टू वन डेटा सोर्स। तो मर्ज क्वेरी ऑप्शन क्या करेगा कि आप जैसे एक पर्टिकुलर डेटा सेट है, आप उस डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंस हियर। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ ज्वाइंस एज वेल कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंस और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मर्जिंग्स आर देयर। सो हियर इफ़ यू टॉक अबाउट मर्जिंग्स, सो आप पहले डेटा सेट है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डेट है, देन यू हैव प्रोडक्ट, फिर यूनिट्स है, रेवेन्यू है एंड इसके बाद आपके पास क्या है, स्टोर आईडी है। तो ये जो डेटा सेट है ये आपका प्रोडक्ट का है, कहीं ना कहीं स्टोर आईडी आपके पास यहाँ पे दे रखी है। तो स्टोर आईडी वाइज आप देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट की कितनी यूनिट बिकी हैं और टोटल रेवेन्यू कितना उसने जनरेट किया है। दूसरा डेटा सेट अगर आप देखोगे यहाँ पे वी हैव दिस अगेन द सेम डेटा सेट, okay, where you have the other records. That means here you can say we have the records of date, product, unit sold, revenue and store id. तो जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो अब आप यहाँ पे बेसिक समझे, जब भी कभी आप इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर रहे हो एक के अंदर, एक तरीके से जो डेटा है कॉलम वाइज अगर आप देखेंगे सेम ही डेटा है लगभग ऑलमोस्ट। ओके, आई मीन द कॉलम के जो नाम है वो भी सेम है, डेटा जो अंदर है वो भी लगभग सेम है ऑलमोस्ट। बट जो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये डेटा 1 है और ये दूसरा डेटा है। तो दैट इज़ ऐसा होता है कि इंडस्ट्री के अंदर आपके पास एक साल का डेटा है, फिर उससे प्रीवियस ईयर का डेटा है, फिर उससे प्रीवियस ईयर का डेटा है और आपको ये सारा डेटा मर्ज करके क्लब करके एक फ़ाइल के अंदर लिखना है कि क्योंकि डेटा आपका ये लगभग उसके फील्ड नेम सभी की सेम है। ओके, तो जब भी कभी आप ये वाला ऑपरेशन मर्जिंग का परफॉर्म करेंगे तो इसमें आप अपेंड ऑप्शन को यूज़ करेंगे। कौन से ऑप्शन को यूज़ करेंगे? अपेंड ऑप्शन को, क्योंकि आपके जो कॉलम नेम्स हैं वो सारे सेम हैं और जो टाइप ऑफ द डेटा है वो भी एज इट इज़ उन सबका सेम है। तो जब आप यहाँ पे अपेंड क्वेरी का ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो इट इज़ आस्किंग यू डू यू वांट टू अपेंड हियर ओनली ऑन द करंट वन और डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू क्वेरी हियर। सो आई से जस्ट टू डिफरेंशिएट इट, मैं एक नई क्वेरी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे डेटा 1 और डेटा 2 दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। सो हियर इट इज सेइंग कॉन्कैटिनेशन, एक तरीके से आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो जैसे कि टेक्स्ट 1 को टेक्स्ट 2 के साथ। सो डेटा 1 को डेटा 2 के साथ वी आर कॉन्कैटिनेटिंग इट। जैसे टेबल 1 है और दूसरा जो टेबल है हमारे पास डेटा 2 है, इन दोनों को एक साथ कॉन्कैटिनेट किया, ओके कर दिया, तो इट विल क्रिएट अ न्यू क्वेरी फॉर मी जिसका नाम होगा यहाँ पे अपेंड। इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पे, सो दिस इज़ द डेटा दैट वी हैव फॉर दी ऊपर वाले जो 3 रिकॉर्ड हैं, ये तीनों रिकॉर्ड हमारे किसके हैं? ये रिकॉर्ड डेटा 1 के हैं और जो नीचे वाले जो रिकॉर्ड है हमारे पास, ये रिकॉर्ड हमारे पास डेटा 2 से आए। तो इसने दोनों ही डेटा को एक साथ क्लब्ड कर दिया और आपको आउटपुट दे दिया अपेंड का। नाउ लेट्स मूव, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स को एक साथ आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो अगर डेटा आपका एक ही टाइप का है। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं इसमें मर्ज क्वेरी के ऑप्शन को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मर्ज क्वेरी? फॉर दैट वी नीड दिस डेटा हियर विच इज़ द स्टोर डेटा एंड देन द प्रोडक्ट डेटा दैट यू हैव इट। सो इनसाइड द प्रोडक्ट डेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की आईडीज़ हैं, आपके पास प्रोडक्ट का नाम है, आपके पास में कैटेगरी है कौन सी, और आपके पास मैनेजर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोडक्ट टेबल में है। कितनी इंफॉर्मेशन है? 4 इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट की आईडी, उसका नाम, उसकी कैटेगरी और कौन है मैनेजर जिसने एक प्रोडक्ट जिसके यहाँ से सेल हुआ।
अगर आप स्टोर डेटा देखेंगे तो स्टोर डेटा के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग इन्फॉर्मेशन है। आपके पास स्टोर आईडी यहाँ पर है, आपके पास प्रोडक्ट आईडी है, मतलब पर्टिकुलर स्टोर से कौन सी प्रोडक्ट आईडी आपकी निकली है, सेल हुई है, कितने यूनिट उसकी सोल्ड हुई हैं, और व्हाट इज़ द टोटल प्राइस यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है। बट अगर आपको जानना है, सपोज करो कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टोर आईडी का मैनेजर का नाम जानना है, या मुझे प्रोडक्ट का नाम जानना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी जाननी है, तो फिर कैसे जानेंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे दूसरे वाले टेबल में स्टोर्ड है। तो यहाँ पर आपका काम आता है ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट, इसका नाम है मर्ज क्वेरी। आप एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ में अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ज्वाइनिंग करेंगे। एक तरीके से एक नया टेबल ही आउटपुट में ऐसा क्रिएट होगा, जहाँ पे बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन सी, किसके बेसिस पे ज्वाइनिंग परफॉर्म होगी, इसको भी समझना है। यहाँ पे जैसे कि कॉमन कॉलम, इफ़ यू सी द प्रोडक्ट आईडी इन द टेबल 1 एंड सेम प्रोडक्ट आईडी इन द टेबल 2, दे आर कॉमन, ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन कॉलम के बेसिस पे आपकी यहाँ पे मर्जिंग परफॉर्म होगी, और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे आगे के कॉलम्स के आउटपुट शो होंगे। तो मर्ज क्वेरी के ऑप्शन पे जाएंगे। नाउ इट इज सेइंग, क्या आप करंट टेबल के अंदर मर्जिंग परफॉर्म करना चाहते हो या फिर एक नया टेबल क्रिएट करना चाहते हो। सो फॉर द टाइमिंग आई वांट टू क्रिएट अ न्यू क्वेरी जस्ट टू शो यू द आउटपुट। तो मर्ज क्वेरीज के ऑप्शन पे जाओगे यहाँ से। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टेबल है आपका वो क्या है, स्टोर डेटा है। सेकंड जो टेबल होगा that is we have product data. Okay, now we have these two. Now what is the common column between them? प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी आपका क्या है यहाँ पे, कॉमन है। तो आपने ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्वाइन ये परफॉर्म कर रहा है। कौन सा ज्वाइन परफॉर्म किया है इसने, लेफ्ट आउटर, दैट मीन्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट, ओके, एंड मैचिंग फ्रॉम द सेकेंड। सो यहाँ से आप ज्वाइन चूज कर सकते हो कौन सा ज्वाइन आपको चाहिए, लेफ्ट आउटर चाहिए, आई मीन लेफ्ट ज्वाइन चाहिए, राइट ज्वाइन चाहिए, राउट आउटर, फुल ज्वाइन चाहिए, इनर ज्वाइन चाहिए, लेफ्ट एंटायर, राइट एंटायर, व्हाट काइंड ऑफ ज्वाइन डू यू वांट। तो बाय डिफॉल्ट इट इज गिविंग अस लेफ्ट आउटर, दैट इज लेफ्ट टेबल। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट टेबल से मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड चाहिए, ओके, और राइट टेबल से मुझे सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए। तो जैसे कि P100 है तो P100 मैच करके आपको आउटपुट दे देगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, मैनेजर क्या है, एज इट इज। अगर आप इसको ओके करोगे, नाउ यू विल सी दैट ये दोनों टेबल्स आपके मर्ज हो जाएंगे। सो नाउ दैट दिस इज द टेबल 1 दैट यू हैव टिल टोटल प्राइस, इट्स बीन मर्ज्ड टू द प्रोडक्ट डेटा। प्रोडक्ट डेटा से ये मर्ज्ड हो गया इधर। अगर आप देखोगे यू कैन सी कि आपको ये डबल एरोज पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, देन यू कैन सी द नेम ऑफ द कॉलम। जब आपका आउटपुट में क्या चाहिए यहाँ पे, व्हाट कॉलम, आप यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट आईडी है तो वी डोंट वांट प्रोडक्ट आईडी। लेकिन अगर आपको चाहिए समझने के लिए, सो वी कैन जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम हियर एंड वी कैन से ओके। So now here you can say this is the merging operation where you can say one column is merged vertically, I mean horizontally here to the other column based on what, product ID। सेम ही प्रोडक्ट आईडीज है। अगर आप देखोगे 101, 101, ओके, 100, सॉरी 100, P200, P200, P300, P300 एंड मर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट का मैनेजर कौन है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो इस तरीके से आप मर्जिंग परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल टेबल्स को एक साथ इस तरीके से मर्ज किया जाता है। सो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ ऑल्दो हमने सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिए हैं, फिर उसके बाद हम स्क्रिप्ट के बेसिस पे भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा सेट को। जैसे कि वी कैन ऑल्सो यूज़ आर स्क्रिप्ट, वी कैन ऑल्सो यूज़ आवर पाइथन स्क्रिप्ट, और उसको यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट को हम रन कर सकते हैं। So it says you can use the Python to transform and shape your data. Python needs to be installed for you to add a Python script. उसके लिए आपके पास में Python यहाँ पे installed होना चाहिए। Same here we have R भी आपके पास यहाँ पे installed होना चाहिए to run that particular Python और R की script को। Okay, so it means कि आप Python से भी आप कर सकते हो ट्रांसफॉर्म डेटा को, और R के स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो कोडिंग लिख के। नाउ हियर वी हैव अदर ऑप्शंस, जैसे कि आप देखोगे ड्यूरेशन का, टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। टाइम के थ्रू व्हाट ऑल वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि टाइम का डेटा सेट अभी हमारे पास इधर है नहीं, बट वी हैव द डेटा सेट ऑफ ओनली ऑर्डर्स। बट एक बार ट्राई करते हैं टाइम के अंदर, यू कैन सी व्हाट ऑल ऑप्शंस यू आर एबल टू सी हियर, दैट यू कैन सी दीज ऑप्शंस, व्हाट इज द टाइम लोकल, व्हाट इज द टाइम ओनली।
जैसे डेट है, डेट में से मुझे टाइम ही चाहिए सिर्फ, तो टाइम दे देगा आपको। लोकल टाइम है तो लोकल टाइम शो कर देगा। यू वांट टू पार्स द टाइम वैल्यू ओके फ्रॉम द टेक्स्ट, दैट आल्सो इट कैन डू। यू वांट टू गेट द आवर्स फ्रॉम द टाइम, दैट आल्सो इट कैन डू। यू वांट द मिनट, यू वांट सेकंड फ्रॉम द टाइम, वो भी करके आपके लिए दे देगा। यू वांट टू कंबाइन द डेट एंड द टाइम टुगेदर, तो डेट और टाइम को भी एक साथ कंबाइन कर देगा। आपको अर्लीस्ट चाहिए, आपको लेटेस्ट चाहिए टाइम, लेटेस्ट टाइम भी आपको दे देगा फ्रॉम द करंटली जो भी सिलेक्टेड कॉलम्स हैं। अर्लीस्ट टाइम आपको चाहिए तो वो भी आपको करंटली सिलेक्टेड कॉलम में से अर्लीस्ट टाइम आपको निकाल के दे देगा। ओके तो ये टाइम के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक टाइम का भी डेटा सेट रखूँ और एक बार ये वाली वैल्यूज़ को भी उसमें से निकाल के शो करूँगा आपको। तब तक हम एक काम करेंगे, ऐड कॉलम्स के ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली है। अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा ही ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को हमने एक्सप्लोर कर लिया है अच्छी तरीके से। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा। अगर आप नीचे होम टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी हमने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ भी मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट और प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं उसको, एंड वी विल ट्राई टू टेक इट इनसाइड द नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। अब हम चलते हैं ऐड कॉलम के अंदर, और ऐड कॉलम के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉपरली इसको ऑब्जर्व करेंगे, इट सेज दैट कि अब यहाँ पे जनरल ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। अब तक तो हमने टेक्स्ट के थ्रू कॉलम कैसे ऐड करना है, नंबर के थ्रू कॉलम कैसे ऐड करना है और डेट और टाइम के थ्रू कॉलम कैसे ऐड करना है, वो यहाँ पे लगभग हमने सीखा। बट हम सीखेंगे जनरल तरीका क्या हो सकता है कॉलम ऐड करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट दीज ऑप्शंस वन बाय वन। अगर आप टोटल प्राइस पे यहाँ पे जाते हैं और ये पर्टिकुलर कॉलम को मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट मतलब सेम ही कॉलम, आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन। उसके लिए आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं और डुप्लीकेट ऑप्शन को यहाँ से चूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट द सेम। डुप्लीकेट क्या करेगा, जो करंट कॉलम है उसकी एक कॉपी बना देगा आपके लिए। सो दिस इज द कॉपी ऑफ द करंट कॉलम तो उसका डुप्लीकेट करके दे दिया जस्ट उसने। देन यू हैव नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर, दैट इज इंडेक्स कॉलम्स। तो इंडेक्स कॉलम्स क्या करेगा आपके लिए, इट विल जस्ट क्रिएट अ न्यू इंडेक्स फॉर यू। ठीक है, इंडेक्स के अंदर आप मतलब एक सीरियल ऑर्डर में आपको वो इंडेक्स एक सीरियल नंबर में आपको दे देगा। अगर आप 0 से करेंगे तो 0 से वो इंडेक्स आपको बना के दे देगा एक नया कॉलम। अगर आप 1 से करेंगे तो इट विल क्रिएट एन इंडेक्स फॉर यू। एक तरीके से एक सीरियल नंबर जनरेट कर देगा फ्रॉम 1 से लेके आगे तक कंटिन्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा होता है कि कॉलम के अंदर एक प्राइमरी की नहीं होती है जो कि हेल्प करती है आपकी ज्वाइनिंग के लिए हेल्प करती है। तो किस लिए ज़रूरी होती है इंडेक्स की, समटाइम्स व्हाट हैपेंस यू डोंट हैव द कॉलम ऑफ अ प्राइमरी की इनसाइड योर टेबल, ओके, एंड यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कॉलम हियर बेस्ड ऑन द इंडेक्स, और इंडेक्स के बेसिस पे आप अपने दूसरे कॉलम के साथ में ज्वाइन करना चाहते हो। या लेकिन जब भी ज्वाइन करोगे कोशिश ये करना है कि जो इंडेक्स आप यहाँ पे बना रहे हो वही सेम इंडेक्स आपका दूसरे कॉलम में भी होना चाहिए, दूसरे टेबल में। उसके बेसिस पे वो ज्वाइन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एक तरीके से एक सीरियल नंबर आप डाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। साथ ही आप क्या काम कर सकते हो, आप यहाँ पे इंडेक्स और खुद का कस्टम इंडेक्स भी बना सकते हो। जब कस्टम पे जाओगे सो यू विल हैव द ऑप्शन व्हाट इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स यू आर गिविंग एंड व्हाट इज़ द इंक्रीमेंट यू आर गिविंग। सपोज आप कह रहे हो कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1001 लाइक दिस, एंड इसके बाद ये 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ यू विल गेट दिस इज इट इज़ इंक्रीमेंटेड हियर ऑटोमेटिकली। 1 से इंक्रीमेंट करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, सो इट विल जस्ट ऐड एन इंडेक्स, ठीक है, टू योर करंट टेबल दैट यू हैव इट। एक इंडेक्स के कॉलम को ऐड कर देगा। डुप्लीकेट कॉलम समझ लीजिए। नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ हियर, लेट्स मूव टू दिस, दैट इज वी कॉल इट एज द कंडीशनल कॉलम। सो कंडीशनल कॉलम में क्या है कि बेस्ड ऑन द कंडीशन आप एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो। कंडीशन चेक करा सकते हो पहले करंट कॉलम के अंदर, और एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे पास टोटल प्राइस है और मुझे टोटल प्राइस के कॉलम के अंदर यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे आई वांट कि मेरे पास यहाँ पे 3 आउटपुट्स आए। टोटल प्राइस यू कैन से 300, 500 एंड 1000। अगर टोटल प्राइस की वैल्यू 1000 से ज़्यादा होती है तो आई विल कॉल इट एज अ हाई प्राइस सपोज। तो आप पहले तो नाम दे दो, ओके, ग्रुप करके कि दिस इज जस्ट गिविंग
total price groups. So 3 groups I want to create. The first is based on what, किस कॉलम के बेसिस पे क्रिएट करना है. तो टोटल प्राइस की कॉलम पे I want to create. What is the operator? Here you can say this is the operator you are using. Whether it is equal to, whether it is greater than or equal to. कंडीशन क्या है? अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा है तो you can put here, अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा है then you are going to call it as high price, right? फिर से एक नया क्लॉज यहाँ पर आप क्या ऐड करोगे. अगर अगेन द टोटल प्राइस वो चेक करेगा, अगर 1000 से ज़्यादा नहीं हुआ है देन इट इज़ गोइंग टू चेक द सेकंड कंडीशन. इफ इट इज़ मोर देन 500 देन यू आर गोइंग टू कॉल इट एज मीडियम प्राइस. और अगर 500 से छोटा है देन यू आर गोइंग टू कॉल इट इन दी एल्स वेयर इट इज़ गोइंग टू बी लो प्राइस. तो ऑल द प्राइस हियर दैट यू विल गेट, अगर वो 500 से ज़्यादा है या 1000 से ज़्यादा है, दैट 1000 से ज़्यादा इट विल कम विद द हाई प्राइस. 500 या 500 से ज़्यादा है तो मीडियम प्राइस, और 500 से कम है तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट अ ग्रुप हियर विच इज़ ऑफ लो प्राइस. क्यों ज़रूरी है? अगर मुझे कल को प्राइस के बेसिस पे ये जानना होगा कि प्राइस के बेसिस पे व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये मुझे निकाल के दे देगा. प्राइस के बेसिस पे मुझे कोई और एग्रीगेशन करना है तो ये वो भी करके मेरे को निकाल के दे देगा फाइनल एनालिसिस में, जब हम अपने एनालिसिस को बिल्ड करेंगे. तो इस तरीके से आप कंडीशनल कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा सेट में. डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है फ्रॉम हियर. नाउ लेट्स मूव टू द ऑर्डर्स डेटा सेट हियर. और इस ऑर्डर अब इस ऑर्डर्स डेटा सेट के अंदर अगर आप देखेंगे वी हैव द अदर ऑप्शंस वेयर यू कैन ऐड अ कॉलम फ्रॉम द एग्जाम्पल. ओके, आई मीन अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल है तो उस एग्जाम्पल के बेसिस पे एक नया कॉलम अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है कि इन्वोकिंग द कस्टम फंक्शन. अगर आपने पहले से ही कोई डिफाइंड यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है, उस फंक्शन के बेसिस पे करंट कॉलम आपको क्रिएट करना है, एक न्यू कॉलम आपको क्रिएट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. राइट नाउ वी डोंट हैव एनी फंक्शन डिफाइंड हियर. नेक्स्ट वी हैव द कस्टम कॉलम. कस्टम कॉलम सेज कि अगर आप अपना खुद का कोई फंक्शन लिखना चाहते हो तो उस बेसिस पे आप एक यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर सकते हो. लेट्स से वी हैव द प्राइस ओनली. प्राइस के बेसिस पे एक काम करेंगे, कस्टम कॉलम पे चलते हैं और कस्टम कॉलम पे हम लोग एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं. तो कस्टम कॉलम पे जाओगे तो आप यहाँ पे अपना खुद से कोडिंग करके लिख सकते हो. जैसे कि सपोज करो मुझे यहाँ पे चाहिए एक न्यू कॉलम. ओके, ट्रू फॉल्स मैं उसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स, राइट. तो ट्रू फॉल्स में लेट्स से कि वी हैव दी बैक साइड में अगर आप देखोगे कि हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, सेगमेंट्स हैं, और मुझे ट्रू फॉल्स किसके बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट कराना है. लेट्स से वी हैव वी विल गोइंग टू क्रिएट इट हियर बेस्ड ऑन द रीजन. ओके, सपोज मुझे यहाँ पे एक अलग से एक नया रीजन क्रिएट करना है और दैट रीजन विल बी ऑन द ट्रू फॉल्स. अगर वो साउदर्न रीजन है तो एक नया कॉलम मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ. ओके, साउथ रीजन. ओके, एंड इन साउथ रीजन के अंदर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉलम आई वांट टू क्रिएट. सपोज मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है कि अगर विल यूज़ इफ़ हियर, और इफ़ के अंदर अगर हमारे पास जो रीजन है दैट रीजन आई विल सेलेक्ट, आई विल जस्ट इंसर्ट दिस रीजन. अगर ये रीजन आपका साउथ है सो आई विल कॉल इट एज साउथ. then I'll call it as 1, or else I'll call it as 0. Okay, one second.
ओके, तो विल जस्ट राइट इट एज, लेट्स से कि अगर 1 है तो उसको 1 लिख दोगे और इसको हम 0 लिख देंगे, दैट्स इट। अगर अगर रीजन आपका साउथ है तो विल कॉल इट एज 1, एल्स वी आर गोइंग टू कॉल इट एज 0 और इसको नाम दे देंगे साउथ रीजन और ओके कर देंगे, बस दैट्स इट। जैसे आप इसे ओके करोगे यू विल सी दैट इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम फॉर यू वेर यू विल हैव, जहाँ पे भी साउथ रीजन है इट विल क्रिएट 1 फॉर इट और इट विल गिव यू द 0 रिस्पेक्टिव फॉर कि अगर वो रीजन आपका साउथ नहीं है। तो आपने साउथ रीजन के लिए चेक किया, सेम वे आप क्या कर सकते हो बाकी किसी और कॉलम के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। सपोज प्राइस के बेसिस पे आपको चेक करना है, प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवाना है, उस बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंडीशनल कॉलम्स यू कैन क्रिएट इट। 2 कॉलम्स अगर आपको ऐड करने हैं यहाँ पर वो भी आप कर सकते हो। लेट्स से वी वांटेड टू ऐड हियर whatever the 2 columns that we have it, लेट्स से वी हैव द सेल्स एंड द प्रॉफिट वी हैव। अगर मुझे प्रॉफिट को डिवाइड करना है सेल्स से तो मैं एक नया कस्टम कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ और उसको नाम दे सकता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, आई कैन जस्ट नेम इट एज प्रॉफिट परसेंटेज और यहाँ पे डिवाइड करवा सकते हैं हम किस कॉलम को डिवाइड करना है। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट के कॉलम को डिवाइड करना है, जस्ट सेलेक्ट द प्रॉफिट कॉलम एंड इसको हम डिवाइड करेंगे सेल्स के कॉलम के साथ। ओके, तो आपके पास में यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा द प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय द सेल्स, लाइक दिस यू कैन से द वैल्यूज इट विल जस्ट शो इट टू यू। ओके, तो प्रॉफिट को डिवाइड करके सेल्स के साथ में एक परसेंटेज में आउटपुट यहाँ पे शो कर देगा वो, एंड दिस थिंग लेटर ऑन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू, इसको फॉर्मेट कर सकते हो आप परसेंटेजेस में, तो ये परसेंटेजेस में शो होके आएगा आपको। ओके, तो इस तरीके से आप न्यू कॉलम्स, खुद के कस्टम कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ IAM लैंग्वेज हियर। और based on the conditions also you can create the index columns, you can create the columns from the example। अगर ऑलरेडी कोई कॉलम यहाँ पे बना हुआ है और उस कॉलम से कोई एग्जाम्पल लेके कोई कॉलम क्रिएट करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ व्हाट वी हैव इन द होल। अगर आप समझें कि क्वेरी एडिटर के अंदर व्हाट ऑल ऑप्शंस दैट वी हैव इट, अब इसके अंदर ये समझेंगे कि क्वेरी के अंदर वी हैव दी वी कैन जस्ट रिफ्रेश द क्वेरी एज वेल। क्वेरी को रिफ्रेश करने का मतलब ये होगा कि आपकी जो क्वेरी डेटा सोर्स के साथ कनेक्टेड है उस डेटा सोर्स में अगर कल को कोई भी चेंजेस होते हैं आप उसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। राइट, क्वेरी की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पर्टिकुलर ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी, यू कैन जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन एंड यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। करंट में ये आपकी जो रिपोर्ट है ये इनेबल लोड है, मतलब कि यहाँ पर ये रिपोर्ट आपने इसको लोड किया हुआ है, जब इसको क्लोज एंड अप्लाई करेंगे दोज चेंजेस विल अप्लाई टू दी डेस्कटॉप विंडो एज वेल। अगर आप एडवांस एडिटर में जाएंगे तो एडवांस एडिटर में जितने भी चेंजेस आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं या जितने भी स्टेप्स आपने लगाए हुए हैं वो सारे स्टेप्स आप यहाँ पर देख पाएंगे वन बाय वन। सो ऑल द स्टेप्स दैट यू अप्लाइड दिस इज व्हाट M लैंग्वेज इज। तो ये M लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे इसने कोडिंग फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी स्टेप्स आपने स्टेप बाय स्टेप लगाए हैं वो सारे यहाँ पर आपको शो करेंगे। ओके, मैनेज मतलब आप अपनी ये क्वेरीज को मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, ऑल दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल टू हियर ऑल्सो। जब आप इसे राइट क्लिक करोगे तब भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप इस क्वेरी के रिजल्ट को आउटपुट में स्टोर कराना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। डेटा सोर्स की सेटिंग्स चेंज करनी है यहाँ से, यू वांट टू मैनेज दोज सेटिंग्स, तो मतलब जो आपका डेटा है जहाँ पे कनेक्टेड है ओके उसकी सेटिंग्स भी अगर आपको चेंज करनी है वो भी देख सकते हो। कोई डेटा मैनुअली एंटर करना है तो यू कैन एंटर द मैनुअली डेटा, एंटर डेटा पे क्लिक करके कंट्रोल V करके आप डेटा को एंटर कर सकते हो। जो रीसेंट सोर्सेज हैं वो यहाँ से देख सकते हो, नई सोर्स कोई ऐड करनी है तो वो यहाँ से देख सकते हो। तो वी हैव कवर्ड द होल थिंग हियर, होम, ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम्स। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं दैट इज ऑफ व्यू का ऑप्शन आता है। तो व्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो क्वेरी सेटिंग्स का ऑप्शन है, क्वेरी सेटिंग्स को हटा दोगे तो इट विल नॉट कम, ये आपकी क्वेरी सेटिंग्स की ऑप्शंस है। फॉर्मूले बार को हटा दोगे तो वो फॉर्मूले बार विल नॉट कम, यू वांट दैट टू कम हियर। इसके बाद डेटा प्रीव्यू का ऑप्शन है, अभी कॉलम की प्रोफाइलिंग इट इज शोइंग यू, अगर आप इसको यहाँ पे टिक कर दोगे तो नीचे कॉलम प्रोफाइलिंग आपको यहाँ पे शो करेगा जिस भी कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, लाइक दैट। ओके, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं, कितने डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हैं, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा, राइट। देन यू है कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको शो करेगा यहाँ पे। कॉलम की इसके अंदर वाइट स्पेसेस हैं, कॉलम की क्वालिटी हम यहाँ पे ऑलरेडी दिखा ही रहे हैं कि कितने वैलिड हैं, रिकॉर्ड एम्प्टी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है।
ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव हियर इन द व्यू। कोई पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है तो ये ऑप्शन को आप यूज़ करके किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जा सकते हो। एडवांस एडिटर से सेम एडवांस एडिटर विंडो विल ओपन। क्वेरी के अंदर आपको डिपेंडेंसी दिखाएगा, क्वेरी की डिपेंडेंसी विद ऑल द क्वेरीज दैट यू हैव इट रिस्पेक्टिवली। यू हैव टूल ऑप्शन एंड हेल्प, ये ज़्यादा हम लोग यहाँ पे हेल्प, कुछ भी हेल्प से रिलेटेड अगर आपको चाहिए यू कैन जस्ट गो टू दीज डॉक्यूमेंटेशन दैट यू हैव। Okay, so you have these things available inside your Power BI query editor. So I hope ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी क्वेरी एडिटर में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कि हमारे पास ये एनटाइडी डेटा सेट है। एक तो सबसे पहले नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको क्लीन करेंगे, और जो हमारे पास में ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न का डेटा सेट है इसको भी हम यहाँ पे मर्ज करेंगे। सो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। सेम चेंजेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे PBI डेस्कटॉप के अंदर, राइट। सो ये सारे चेंजेस आपके अप्लाई हो जाएंगे और ये सारे टेबल्स जितने भी हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। सो वील वेट फॉर इट। It's loading, it's taking time. So for the next video what we can do is we will work on the cleaning part. Till then आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेटा आपका जितना भी है वो सारा इधर लोड हो जाएंगे सारे टेबल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों फिर मिलेंगे और इसको आगे और अच्छे से समझेंगे, राइट। कैसे अपने करंट डेटा सेट को क्लीन करना है। मैं आपसे कहूँगा कि अब आप पूरा क्वेरी एडिटर सीख चुके हो तो अब खुद ही आप ये जो डेटा सेट है एम्प्लॉय का उसको क्लीन कर कर लेकर आए। Okay guys, for today we are going to end our session here, and this is how we work on the query editor, and this is how we clean the data set with the help of these options available. So stay tuned, we'll meet in the next video guys. Take care, till then subscribe to the channel. Okay, bye bye, we'll see you in the next video.